हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रोफेसर विशाल सर की पाठशाला में। लास्ट लेक्चर में આપણે લોકોએ વેલ્યુએશન ઓફ ગુડવિલ સ્ટાન્ડર્ડ 12th કોમર્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં પાર્ટ 1 કમ્પ્લીટ કર્યો। તેમાં આપણે લોકોએ સિમ્પલ એવરેજ પ્રોફિટ મેથડ જોઈ હતી। આજના આપણે આ જે પાર્ટ છે એમાં આપણે લોકો જોઈશું વેટેડ એવરેજ પ્રોફિટ મેથડ। બીજી મેથડ છે વેટેડ એવરેજ પ્રોફિટ મેથડ, એ જોઈશું। જોઈએ છીએ આ પાર્ટ કેટલો ચાલે છે। હોપ છો કે તમે બધા લોકો ઘરે હશો, આરામમાં હશો, પણ આરામની સાથે સાથે કંઈ કંઈ પુસ્તકનું વાંચન કરજો। આપણા જે જૂના પ્રાચીન પુસ્તકો છે એનું વાંચન કરજો, જેથી તમારામાં મોટિવેશન ભરપૂર આવે। કારણ કે આટલા દિવસ ઘરમાં બેસી રહેવાથી કદાચ એવું પણ બનશે કે તમે લોકો નિરાશ થઈ જાઓ, ભણવામાંથી મન ઉડી જાય। તેના કરતાં આપણા પ્રાચીન પુસ્તકો વાંચો। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતજી છે, શિવપુરાણ છે, જે લોકોને મજા આવે એવા પુસ્તકો વાંચતા રહેજો દોસ્તો, જેથી કરીને તમારામાં એનર્જી છે એવી જ બરકરાર રહે। સવારમાં વહેલા ઉઠવું, વહેલા ન ઉઠતું કાંઈ નહીં, એટલીસ્ટ 8 to 9 વાગ્યા પહેલાં ઉઠી જાઓ અને નાહી ધોઈ લો, ફ્રેશ થાવ, એ જરૂરી છે દોસ્તો। બાકી શું થશે, જ્યારે આ બધું ઓપન થશે ત્યારે તમને લોકોને કદાચ ભણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ પણ નહીં રહે, એવું પણ બને। તો હસતા રહ્યો, ખુશ રહો, દરેક સિચ્યુએશનમાં સોંગ સાંભળતા રહ્યો, સોંગ ગાઓ, બરાબર છે। ચલો, તો આજે આપણે શરૂ કરીએ છીએ પાર્ટ 2 ગુડવિલ, વેલ્યુએશન ઓફ ગુડવિલ, કોમર્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ 12th। હવે આપણે લોકો જોઈએ છીએ ગાઈસ કે વેટેડ એવરેજ મેથડ, હવેની જે મેથડ છે એના આપણે નામ છે વેટેડ એવરેજ મેથડ। વેટેડ એવરેજ મેથડ, વેટેડ એવરેજ મેથડ, વેટેડ એવરેજ મેથડ। હવે આ વેટેજ એવરેજ મેથડ શું છે? સોરી, વેટેજ એવરેજ મેથડ, વેટેજ એવરેજ મેથડ। હવે આ વેટેજ એવરેજ મેથડ શું છે? જેવી રીતના આપણે લોકો સ્ટાન્ડર્ડ 11thના સ્ટેટમાં કરતા હતા કે દરેક જે ડેટા હતો એને આપણે વેઇટ આપતા હતા। કયો વેઇટ આપતા હતા? 1 2 3 4, યાદ છે? બીજું વેઇટ એટલે કાંઈ નથી, એક પ્રકારનું ઇમ્પોર્ટન્સને કહેવાય વેઇટ, બરાબર છે। તો હવે આપણે શું કરશું તો કે જે પ્રોફિટ આપ્યો હશે એને આપણે વેઇટ આપશું। જો સિમ્પલ એવરેજ મેથડ છે એ ઘણી વખતે એપ્રોપ્રિએટ આન્સર આપતી નથી હોતી, એવું પણ બને છે। વેઇટ શું કામ? એને વેઇટ તો કે ઇમ્પોર્ટન્સ દેવા માટે વેઇટ આપીએ છીએ। ક્યારે આ મેથડનો ઉપયોગ થશે? વેન ઇટ ઇઝ ટુ બી યુઝ, વેન profit is in trend। જ્યારે પ્રોફિટ છે એ ટ્રેન્ડમાં હશે ત્યારે આ મેથડનો ઉપયોગ થશે। કયો ટ્રેન્ડ? આઈધર ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર ડિક્રીઝિંગ। આનો ટ્રેન્ડ છે કાં તો ઇન્ક્રીઝિંગ હશે ને કાં તો ડિક્રીઝિંગ હશે। વોટ ઇટ મીન્સ, માનો કે આપણે લઈએ કે 2013, 14, 15, 15, 16, 17, અહીંયા જુઓ પ્રોફિટ છે, અહીંયા 2 lakhs, 3 lakhs, 3,50,000, 4,50,000। See guys, here profit are is increasing trend or not? 2 lakh માંથી વધીને કેટલા થયા? ઇન્ક્રીઝ થઈને 3 lakh, 3 lakhs માંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને 350, 350 માંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને 450। તો જુઓ ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં છે કે નહીં, બરોબર? તો આને કઈ મેથડ યુઝ કરવાની? વેટેજ એવરેજ પ્રોફિટ। સપોઝ કરો કે ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં હોય, હું અહીંયા કહું કે પહેલા યરનો પ્રોફિટ છે 3 lakh, બીજા યરનો પ્રોફિટ 280, ત્રીજા યરનો પ્રોફિટ 260, ચોથા યરનો પ્રોફિટ લોસ 40,000। તો જો પ્રોફિટ દર વર્ષે ડિક્રીઝ થાય છે, જો દેખાય છે, પહેલા વર્ષે તો કે 3 lakhs, બીજા વર્ષે તો કે 280, ત્રીજા વર્ષે તો કે 260 અને પાછો લોસ થઈ ગયો 40। તો પ્રોફિટ ડિક્રીઝ થતો જાય છે ગાઈસ। તો અહીંયા આપણે કઈ મેથડનો યુઝ કરી શકીએ? વેટેજ એવરેજ પ્રોફિટ મેથડ। હવે જો શું કામ એને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ વેટેજ એવરેજ આપો, તો કે ભાઈ વેટેજ એવરેજ પ્રોફિટ, નામ શું છે? વેઇટ આપો। કોને આપો? તો કે પ્રોફિટને। તો અહીંયા સિમ્પલ છે, પ્રોફિટને વેઇટ આપશું અને પછી એને આપણે શું કરશું? એવરેજ કરશું, સિમ્પલ। અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા છે વેટેજ પ્રોફિટ કેમ ફાઇન્ડ કરવો એનું આપણને ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3 આપ્યું છે। તો બધા લોકો મારી સાથે પેજ નંબર 93 ઉપર, પેજ નંબર
93 ઉપર આવો, એમાં ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3 જુઓ. ચાલો, જીએસીબીની બુક છે, એમાં પેજ નંબર 3, સોરી પેજ નંબર 93, ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3. આપણે લોકો બધા જ સમ્સ છે એ ક્લાસમાં જ કરશું. મારો જેવું આપણું મોટો છે, જે મારું સ્લોગન છે કે એક પણ વસ્તુ ઘરે નહીં, બરોબર છે, બધી જ વસ્તુ ક્લાસમાં જ, બરોબર. ડેઈલી પ્રેક્ટિસ, ડેઈલી વર્ક, એટલે તમને લોકોને મોર ધેન 90+ માર્ક્સ અકાઉન્ટન્સીમાં આપે જ. ઠીક છે, સો બી સિરિયસ. ચલો હવે જોઈએ છીએ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3. પ્લીઝ રીડ વિથ યોર સેલ્ફ. ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ વેટેજ એવરેજ પ્રોફિટ. નીચેની માહિતી પરથી વેટેજ એવરેજ પ્રોફિટ કાઉન્ટ કરો. ચાલો, સૌથી પહેલાં આપણને શું આપ્યું છે એ જોઈએ. તો કે યર આપ્યા છે. સો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ધ યર ઇન યોર બુક વિથ માય સેલ્ફ, with me 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17. Now what is the profit? For first year it is the 40,000, second year 50,000, 60,000, 70,000. Now see here guys, this is in trend, 40, 50, 60 and 70. So it is in trend. લાસ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને અલગ અલગ ડિફિકલ્ટ સમ આપીશ જે આ ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારી પાસે નથી, બરોબર છે. તો આપણે એપ્રોપ્રિએટ મેથડ ફાઇન્ડ કરવા માટે એ સમ પણ હું તમને એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ કરાવીશ, કારણ કે બધું જ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપે ને એ જ કરવું એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. But we should to do extra something more to develop our mind. Weights. હવે તમને લોકોને મેં કીધું છે કે વેઇટ્સ તમને આપ્યા ન હોય, બરાબર છે, ટેક્સ્ટ બુકમાં, અથવા તમને ક્વેશ્ચનમાં વેઇટ ન કીધા હોય તો આપણે લોકો સ્ટેટમાં જે લેતા હતા એ જ રીતના વેઇટ લેશું. કેટલા? 1, 2, 3, 4. ટોટલ ઓફ વેઇટ્સ કેટલા થાય છે? 10. આફ્ટર ધેટ હવે આપણે શું લેવાનું છે? વેઇટેડ પ્રોફિટ. ચલો, વેટેડ પ્રોફિટ આપણે કઈ રીતના લેશું? તો કે પ્રોફિટ મલ્ટીપ્લાય બાય વેઇટ્સ. ઠીક છે. તો હવે અહીંયા જુઓ, પ્રોફિટ કેટલો છે? 40,000 ઇન્ટુ 1. 40,000 ઇન્ટુ 1 બોલે તો 40,000. 50,000 ઇન્ટુ 2 બોલે તો 1 લાખ. 60,000 ઇન્ટુ 3 બોલે તો 180. 70,000 into 4 280. Total weighted profit is equal to, please give me the answer. Do calculate with yourself, don't see in the books. 6 lakh rupees na guys, total weighted profit. Now what we have to find out? It's a weighted average profit. What is the formula for that? Total weighted profit divided by total number of weights. Total weighted profit divided by total number of weights. Clear guys? Okay. अभी देखो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया था? 6 लाख रुपीस का, और टोटल वेट कितना हमने निकाला? 10. यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 रुपीज. ठीक है, सभी को आया ये सब? एक बार देख लीजिए. मल्टीपल टाइम्स वी विल डू रिवीजन इन आवर क्लास. नाउ सी गाइस, अगर ये आपको सम आ चुका है तो पेज नंबर 105 पे आइए. पेज नंबर
105। अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि भाई ये यूज़फुल है कई बच्चों के लिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। बोलिए सभी आप फ्रेंड्स लोगों को सब्सक्राइब करें। क्या नाम है हमारा? प्रोफेसर विशाल सर की पाठशाला। ओके, अभी देखो, अभी पेज नंबर अब आएंगे 105 पे, सम नंबर 6। पेज नंबर 105, सम नंबर 6। ठीक है, चलो क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो यार यहाँ क्या लिखेंगे? अपने आप काउंट कीजिए, बाद में मेरे से आंसर टैली कीजिए। ठीक है यार, आप लोग अपनी एक तरीके से काउंट कीजिए, मैं अपनी तरीके से काउंट करता हूँ, देखते कौन स्पीड से करता है। प्रॉफिट्स वेट्स वेटेड प्रॉफिट। अपने का तरीके से फास्ट फास्ट डू इट फास्ट गाइस। બેસવું હોય તો બેસી જાજો, ગાડી ચાલી જાય છે। $60 plus 142, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 110, 910, 910 guys, total weight 10। yes, now weighted average profit फॉर्मूला लगाना आप, मैं नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि मैं तो सर हूँ, मेरे को कहाँ एग्जाम पढ़ना है, मेरे को कहाँ एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है, मैं तो सर हूँ। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट्स। चलो हो गया सभी का क्लियर। अभी हमने यहाँ वेटेड प्रॉफिट का खत्म किया कि वेटेड प्रॉफिट किस तरीके से काउंट करता है। ठीक है, अभी बहुत खुश मत होइए, क्योंकि ये मेथड का शायद सम नहीं आएगा। सिर्फ वेटेड प्रॉफिट निकालने का सम नहीं होता है, सम किसका होता है? वेटेड प्रॉफिट निकाल के उसका गुडविल निकालना होता है। तो गुडविल आप सभी लोगों को पता ही है कैसे गुडविल निकालते हैं। पेज नंबर 105 पे सम नंबर 7 पे आइए। पेज नंबर 105, उसका सम नंबर है 7, उस पे आइए सभी लोग। दिख रहा है? ठीक है, चलो पढ़ो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बबूलाल एंड कांतिलाल्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। अंडरलाइन कीजिए, 3-year परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए परचेज का ईयर कौन सा लेना है? 3-year परचेज। परचेज का ईयर कितना लेना है? 3-year परचेज लेना है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट किसका निकालना है? 5 years का। आप सभी लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिंपल 2017 में ये सम आया हुआ था दोस्तों, 2017 में आया था। ईयर प्रॉफिट वेट्स वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, इतना तो सभी लोगों को आता ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब डेटा कहाँ से दिया है? 2012, 13,
13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, तेरी मेरी और अकाउंटेंसी की बड़ी अच्छी ही कहानी। प्रॉफिट कितना आया? 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 और 1,20,000। चलो ये देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है कि नहीं है? 40 से 60, 60 से 75, 75 से 90 और 90 से 1,20,000। यार ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करते हैं। चलो वेट देंगे 1 2 3 4 5। टोटल वेट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इट्स 15 नॉट 10। काउंट कीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी कि 15। चलो वेटेड प्रॉफिट निकालो। 40,000 इंटू 1, 60,000 into 2, 75,000 into 3, 90,000 into 4, 1,20,000 into 5। टोटल कीजिए कितना आता है? 40 + 120, 160, 160 + 2, 360, 360 + 360, 720, 720 + 6, 30, 20, 1345। निकाल आता है कि नहीं आता? देखिए मेरे पास भी कैलसी मैं भी निकालता हूँ। 40 + 120 + 225 + 3 1345। एम आई राइट गाइस? कैसे नहीं होगा भाई? चलो निकालिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। ठीक है, चलो कितना आया? 13,45,000 डिवाइडेड बाय 15। 13,45,000 divided by 15, 89,666, 89,666.67. You can round off this amount with the 1 rupees. ठीक है, now goodwill. एवरेज का एवरेज जब मेथड था, सिंपल एवरेज मेथड, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखते थे। अभी यहाँ कौन सा एवरेज प्रॉफिट है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase, number of year of purchase. Now weighted average profit निकाला, कितना आया? 89,666.67 इंटू ईयर ऑफ परचेस कितना था? 3। अभी देखिए कितना आ रहा है? 2,68,999 ऐसा कुछ आ रहा है। 89,666.63 इंटू 2,69,000 रुपीज़। 2,69,000 रुपीज़ आया फ्रेंड्स। अगर आप लोग कॉपी करना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए, वरना आप मेरे साथ ही लिखिए। मेरे साथ काउंट करेंगे सम तो ज़्यादा आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हो गया? सभी जिसको भी हो गया हो वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 94 पे आइए। देखो दोस्तों, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, और आप सब लोग समझते नहीं हो, वर्क ज़्यादा करते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। आप नहीं पढ़ोगे तो देश कैसे आगे जाएगा? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 94।
ठीक है, ओके। रीड द क्वेश्चन गाइस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फॉर्म एट 3 year परचेस। अंडरलाइन दिस वर्ड 3 year परचेस। 3 year परचेस को अंडरलाइन करो, ठीक है। तो परचेस का ईयर कितना लेना है हमें, 3 year। वेरी नाइस। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इस लोगों ने बोल ही दिया है कि क्या मेथड का यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलो देखते हैं कौन आगे बढ़ता है, आप या मैं, कौन फास्ट करेगा ये सम। आगे तो आप ही लोग बढ़ोगे भाई, नई जनरेशन। चलो ठीक है, जिस भी लोगों को ये सम आ रहा है वो फटाफटी मुझसे भी आगे हो जाए, बढ़िया तरीके से भागे। ईयर 2012, 13, 14, 15, 16, 17। प्रॉफिट है हमारा 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000। वेट क्या लगाना है, 1 2 3 4 5। चलो 80,000 इंटू 1 यानी कि 80,000, 120 इंटू 2 यानी कि 2,40,000, 140,000 4,20,000, 160 इंटू 4 6,40,000, 170 इंटू 5 8,50,000। ठीक है, अभी काउंट दिस वन। कितना आ रहा है सभी को, 22,30,000 ऐसा। टोटल वेट 15। ओके ठीक है। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेट्स। ठीक है, कितना आया, 22,30,000 अपॉन 15। निकालिए भाई, कितना आ रहा है, 1,48,666.67। okay, you can round up with the help of 1 rupees. okay guys, now goodwill। कैसे आएगा गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years ऑफ परचेस। हे राम हे कृष्ण, 1,48,666.67 इंटू ईयर ऑफ परचेस कितना था, 3। ओके, तो गुडविल का वैल्यू का क्या आ रहा है, 4,46,000 1 रुपीज़ वट एवर। जो नॉर्मल डिफरेंस होगा वो चलेगा, 2 5 रुपये 1 रुपये का। ठीक है, नाउ गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस मेथड। yippee गाइस, yippee। ठीक है, तो ये मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो आएगा ना वो बढ़िया 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 मेथड आएगा, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। पढ़ने के लिए तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा चलो करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर 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 प्रॉफिट मेथड। मजा आ रहा है क्या, नहीं मजा आ रहा है? देखो, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मजा आएगा तभी तो मजा आएगा। ठीक है,
ચલો હવે લોકો આપણે કરશું સુપર પ્રોફિટ મેથડ. સુપર પ્રોફિટ મેથડ શું મેથડ આ સમજાવે છે એ કહું છું कि सुपर प्रॉफिट एज द नेम सजेस्ट सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि 3-4 लारी वाले हैं जो चाय बेचते हैं, 4 लारी वाले ABCD, उसमें A जो लारी वाला है वो सबसे ज़्यादा रुपए कमाते हैं B, C और D से, ज़्यादा चाय बेचता है भाई B, C और D से. क्यों बेचता है वो मेरे को पता नहीं, बस ज़्यादा बेचता है वो चाय. तो B, C और D जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा A प्रॉफिट अर्न कर रहा है. सपोज कीजिए कि B जो अर्न कर रहा है वो पर मंथ 60,000 है, B, C, D सभी लोग पर मंथ 60,000 अर्न कर रहे हैं, जबकि A है वो 1 लाख अर्न कर रहा है, यानी कि 40,000 वो ज़्यादा अर्न कर रहा है ना, 1 लाख अर्न कर रहा है, वो लोग 60 अर्न कर रहे हैं, तो 40,000 ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो जो सुपर प्रॉफिट अर्न होए, अब यहाँ हम सुपर प्रॉफिट को अपने बिजनेस पे लिखेंगे, बिजनेस के तरीके से कैसे काउंट होता है सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सपोज कीजिए मैंने कोई इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख रुपीस का. कितना इन्वेस्टमेंट किया? 10 लाख का. जो 10 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसे मैं बोलूँगा कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या बोलूँगा मैं उसे? कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, अभी मेरे को लगा कि भाई मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया और हर साल मेरे को 10% मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए? 10%. तो 10 लाख का 10% करो, कितना हो रहा? 1 लाख. मेरे को 1 लाख ऑन होना चाहिए, बस 1 लाख मेरे को ऑन होना चाहिए मेरे बिजनेस में से. ठीक है, ओके. अब मैंने जो प्रॉफिट का एवरेज निकाला तो मेरा अर्निंग हो रहा है 1,50,000. कितना मेरा अर्निंग हुआ? 1,50,000. मैंने क्या सोचा था कितना अर्निंग होना चाहिए था? 1 लाख. तो 1,50,000 मेरा अर्न एक्चुअल में हुआ और होना चाहिए था 1 लाख, तो 50,000 ज़्यादा हुआ. तो ये 50,000 जो ज़्यादा हो रहा है अर्निंग, उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के टर्म्स में से उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट. ठीक है, चलो तो अभी आप चाहे तो इसको स्टेप में याद रख सकते हैं. स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. देखो ये चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बीकॉम में भी काम आने वाला है दोस्तों. कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी कभी कभार क्या होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को सब में दे ही दिया होगा. अगर इंफॉर्मेशन में नहीं दिया है, अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि भाई टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इसको करके भी आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं. 2 चीज़ें, या तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे देंगे या तो आपको टोटल एसेट्स देंगे और टोटल लायबिलिटी देंगे, तो उससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. ठीक है, ये हो गया. यहाँ मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? 10 लाख. तो 10 लाख आ गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टेप 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न स्टेप 2. तो मैंने क्या बोला था कि मेरे को कितना अर्न करना है? 10%. तो मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? 10%. स्टेप 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. क्या होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? चलो मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 10 लाख रुपीज ना. कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मुझे कितना चाहिए था? 10% ना. रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. स्टेप 2 वाला. ठीक है, अभी हम निकालेंगे स्टेप 4. That is the average profit. स्टेप 4 एवरेज प्रॉफिट. क्या एवरेज प्रॉफिट होगा? आइदर एवरेज, सिंपल एवरेज हो सकती है और वेटेज हो सकती है. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. ठीक है,
अभी स्टेप 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट, ये जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसमें से हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को लेस कर दीजिए, यानी कि जो स्टेप 4 है ना उसमें से स्टेप 3 माइनस कर दीजिए तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टेप 5 स्टेप 6, ये क्या है? गुडविल। देखो कौन आया, देखो ये गुडविल आई, क्या आई? गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। स्टेप 1 क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉय। चलो हमारी साथ साथ बोलो बताएं। स्टेप 1 क्यू कैपिटल एम्प्लॉय। स्टेप 2 क्यू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप 4 एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 5 सुपर प्रॉफिट। स्टेप 6 गुडविल यो हनी सिंह। चलो पाછું બોલો। સ્ટેપ પહેલું શું છે? કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરશું? આઈધર સમમાં આપ્યું હશે ઓર ન આપ્યું હોય તો ટોટલ અસેટ્સ માઇનસ ટોટલ લાયબિલિટી। સ્ટેપ 2 એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન। સ્ટેપ 3 એક્સપેક્ટેડ પ્રॉफिट। સ્ટેપ 4 એવરેજ પ્રॉफिट, કાં તો સિમ્પલ ને કાં તો વેટેજ। સ્ટેપ 5 સુપર પ્રॉफिट, એવરેજ પ્રॉफिट માઇનસ એક્સપેક્ટેડ પ્રॉफिट। સ્ટેપ 6 ગુડવિલ, કઈ રીતના મળશે? સુપર પ્રॉफिट ઇન્ટુ નંબર ઓફ યર ઓફ परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है। जो गाइस हजी कही दो, बिलीव मी दिस इज सो सिंपल चैप्टर, सो सिंपल चैप्टर। पूरा मार्क्स आमा तमारा हाथ में ज छे। 6 मार्क्स नु लेसन 6 मार्क्स तमारा ज छे, बरोबर गाइस। तो हूँ ઈચ્છું છું કે તમે લોકો વધારે મહેનત કરો। જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેનલને, તમારા ફ્રેન્ડ્સને કહો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરે। જો તમે લોકો લાઈવ ક્લાસીસ મારી પાસેથી લેવા માંગતા હોય તો પ્રોફેસર વિશાલ સરની લાઈવ ક્લાસીસ જૂનાગઢમાં છે MV એકેડમી, ત્યાં હું લાઈવ ક્લાસીસ આપું છું। તો મારા મોબાઈલ નંબર છે 7229000708। बराबर है। तमने आ विडियो गम्यो होय तो लाइक करजो। बीजू काले आपणे फरी मळीशुं नवा विडियो साथे, नवी मेथड साथे। त्यां सुधी जय हिंद।